Good morning, students. Today we will read remaining part of lesson 6, major landforms of the earth. In this part we will read about plateaus, plains and landforms and the people. A plateau is an elevated flatland. It is a flat top tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of the plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. ओके, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में डेक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज इन कीनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं. तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau area. पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है. यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं. The African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the Chota Nagpur Plateau. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. In India, the Hundru Falls in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spot and are of great attraction to tourists. अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है. भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं. पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं. भारत में छोटा नागपुर पठार में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग फॉल्स इस प्रकार के वाटरफॉल्स के उदाहरण हैं. लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है. कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं यानी कि सीनिक ब्यूटी होती है वहाँ की जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाका, मैदान. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैटलैंड. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 meters above mean sea level. Some plains are extremely level. Others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. Generally, plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the
largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. क्या होता है बेटा, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, तरंगित हो सकते हैं, यानी कि जिगजैग हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें इरोजन कर देती हैं, उनका अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट का वे घाटियों में यानी कि मैदानी इलाकों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से यानी कि डिपॉजिट से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं जहाँ परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। Plants are the most useful areas for human habitations. There is plains. Plains are the most useful areas for human habitation. There is great concentration of people as more flat land is available for building houses, as well as for cultivation. Because of fertile soil, the land is highly productive for cultivation in India too. The Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेतों के लिए यहाँ पर समतल भूमि बहुत ज़्यादा होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स। देन लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, स्थल रूप एवं लोग। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है वो अलग अलग तरह के स्थल रूप में अलग अलग तरीके से रहता है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरिया, बहुत मुश्किल है लाइफ हिली रीजन्स में। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, लेकिन मैदान इलाके में ज़्यादा अच्छी कंडीशंस होती हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे आसान है फसलें उगाना। बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन, हाउस बनाना, रोड बनाना माउंटेन से ज़्यादा प्लेन्स में आसान है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। अब आप पता करिए डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में लोग अलग अलग तरीके से कैसे रहते हैं। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है, जो नेचुरल डिसास्टर होते हैं जैसे भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गई, तूफान आ गया, ठीक है ना, ज्वालामुखी फट गया, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस, बहुत ज़्यादा जिंदगियां जाती हैं और संपत्ति का भी नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस में लोअर द रिस्क, लेकिन हम अवेयरनेस द्वारा इन इंसिडेंट्स से क्या कर सकते हैं, कम नुकसान यानी कि अपने प्रिकॉशन कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। अपने आसपास के लोगों से बात करके पता लगाओ कि कैसे हम बहुत सारे तरह के लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं, कितने तरीके से। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water making them dirty. कई बार हम बहुत गंदे तरीके से यूज़ करते हैं, कई बार हम फर्टाइल लैंड पर घर बना लेते हैं, ऐसे ही हम गार्बेज कहीं पे भी फेंक देते हैं और जिससे पानी गंदा हो जाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर। इसीलिए हमें अवॉइड करना होगा कि हम पृथ्वी जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है ये उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें, केयरलेस मैनर में यूज़ ना करें। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, हमारे लिए ही नहीं बना ये लैंड। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हमारी ड्यूटी है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी इस
सुंदर लैंड को ऐसा ही बना के छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली जनरेशन हमें कोसे कि उन्होंने हमारे लिए तो उन लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है। सो वी हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स विद अ प्रॉपर मैनर।